Praise the Lord, everyone. It gives me immense pleasure to welcome you all to Mahanem TV. Mahanem TV पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हो. And I would like to read from the Word of God from Isaiah, chapter 11, verses 1, 2, and 3. A shoot will come up from the stump of Jesse. From his roots a branch will bear fruit. The Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and of understanding, the Spirit of counsel and of power, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord, and he will delight in the fear of the Lord. Hallelujah. Truly, the branch which Prophet Isaiah is talking about in his word is none other than our Lord and Savior Jesus Christ, who came into this world to save us and to redeem us from our sins. तो आइए हम उसके पवित्र नाम को ऊंचे पे उठाएं एक खूबसूरत गीत के साथ. Let us exalt his wonderful name on high with a beautiful song. And today, you will be blessed by the word by my mother, Miss Ekta Lal, and the Lord is going to bless you. Joy to the world. Joy, joy, joy to the world. Joy, joy, joy to the world. Joy, joy, joy to the world. Let the angels sing. Hey, joy, joy, joy to the world. Joy, joy, joy to the world. Joy, joy, joy to the world. Let the angels sing. Joy to the world. The Lord has come. Let us receive her King. Let every heart prepare in room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. Joy, joy, joy to the world, joy, joy, joy to the world, joy, joy, joy to the world. Let the angels sing. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make his blessings flow, far as the curse is found, far as the curse is found, far as the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. Joy, joy, joy to the world, joy, joy, joy to the world, joy, joy, joy to the world. Let the angels sing. Yeah. Joy, joy, joy to the world, joy, joy, joy to the world, joy, joy, joy to the world. Let the angels sing.
प्रेज द लॉर्ड। आप सबसे मुलाकात करके दिल खुश हो गया। खुदावन का धन्यवाद करती हूँ कि एक बार फिर से उसने मुझे मौका दिया। ही हैज़ गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी येट अगेन टू कम एंड मीट यू ऑल, टू कम एंड टॉक टू यू ऑल। आप सबसे मुलाकात करने का, आप सबसे बात करने का एक बार फिर से मौका मिला, और इस खूबसूरत मौके के लिए, इस नायाब मौके के लिए मैं अपने खुदा की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू माई मेकर, टू माई क्रिएटर, दैट ही हैज़ गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी येट अगेन to greet his people, to come and talk to his people. I am so thankful for today. It is such a beautiful day. एक अलग ही feeling है, there is something different about this entire season. जिस मौसम में, जिस समय में, जिस टाइम में हम चल रहे हैं. Yes, we've had a hard year. मैं यही सुनती हूँ, बहुत लोगों को मैंने देखा है बोलते हुए, सोचते हुए that 2020 has been hard. 2020 has been different. अलग ही साल था. मालूम नहीं अब 2021 कैसा होगा, बट क्रिसमस, जब क्रिसमस आता है ना, जब ये त्यौहार आता है, जब ये फेस्टिवल आता है, व्हेन द क्रिसमस सीजन कम्स, चाहे हमारा साल, हमारा बीता जो गुजरा हुआ टाइम है इस साल में, चाहे कैसा भी बीता हो, दैट एक्साइटमेंट कम्स बैक, दैट हैप्पीनेस कम्स बैक, देयर इज समथिंग इन द एयर. कुछ होता है इस टाइम में, इस फेस्टिवल में, समथिंग जस्ट स्टार्ट्स बिल्डिंग अप. कुछ होता है. एंड इट्स 20th एंड आई वाज थिंकिंग टुडे जब मैं आपसे बात करने आई थी, इससे पहले ही मैं इस बात को सोच रही थी. इट्स 20th एंड वी आर टू 20th आज है, 21st, 22nd, 23rd, 24th, सिर्फ 5 दिन. वी आर जस्ट 5 days बिफोर क्रिसमस. सिर्फ 5 दिन है एंड वील बी इन क्रिसमस. और मैं खुदावन का धन्यवाद करने लगी उस खुशी के लिए, उस आनंद के लिए जो उसने दिया है. वंस अगेन आई ब्रिंग सीजन्स ग्रीटिंग टू यू फ्रॉम माई फैमिली टू योर फैमिली. और मैं यही चाहती हूँ कि ये पूरा समय, मेरी प्रार्थना यही है मेरे अजीज़ों, दिस इज़ माई प्रेयर पीपल ऑफ गॉड, दैट दिस season may be a wonderful season for you, and the new year may bring blessings abound. The new year may bring blessings abound for you and your family. Let's quickly turn to the word of God. आज खुदावन के वचन से कुछ बांटूंगी आपके साथ में. खुदावन के वचन से आपके साथ में बात करूंगी और एक खूबसूरत आयत को आपके बीच में लेके आई हूँ. Let's quickly turn to the book of Isaiah. यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत. The book of Isaiah chapter 11 and verse 1. It says, मैं आपके सामने इंग्लिश में पढ़ूंगी. A shoot will come up from the stump of Jesse, from his roots a branch will bear fruit. हिंदी में लिखा है, यशे के ठूंठ से एक डाली फूट निकलेगी. मालूम, जब ये वचन में हमने सुना है, बहुत बार सुना है, एंड व्हेन वी हियर दिस वर्स, एक ही बात हमारे दिमाग में, हमारे जहन में आती है. ओके, दिस प्रीचर हैज कम एंड दिस प्रीचर इज गोइंग टू स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट द ब्रांच. दिस प्रीचर इज गोइंग टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द ब्रांच. और मैं और आप जानते हैं, क्योंकि हमने ये वचन सुना है कि वो ब्रांच, वो डाली कोई और नहीं, यीशु मसीह थी. यशे का ठूंठ. यशे कौन था? यशे दाऊद का पिता था. जेसी वॉज द फादर ऑफ डेविड. ये इजराइल के घराने की बात हो रही है, ये उस घराने की बात हो रही है, ये उस खानदान की बात हो रही है जिसमें से यीशु मसीह आया. द स्टम्प ऑफ जेसे. यस, द ब्रांच इज जीसस क्राइस्ट. यशायाह ने उसकी बात करी 700 साल पहले, यीशु मसीह की पैदाइश से 700 साल पहले. यशायाह ने कुछ देखा, कुछ सोचा, कुछ समझा, और उसने बोला कि यशे के ठूंठ से एक डाली फूट निकलेगी. मालूम, एक बात आपको बताती हूँ, उस डाली के विषय में मैं आपसे बात करने नहीं आई हूँ आज. उस डाली के, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट दैट ब्रांच, बिकॉज वी नो दैट ब्रांच इज जीसस क्राइस्ट. वी ऑलरेडी नो, वी हैव हर्ड प्रीचर्स टॉक अबाउट हिम, वी हैव हर्ड प्रीचर्स ब्रिंग दिस मैसेज दैट दिस ब्रांच हैज कम टू अस, एंड दिस ब्रांच इज ब्रिंगिंग अस redemption, salvation. This branch is bringing us everything that we have always wanted. हाँ, यीशु मसीह संसार में आया, उद्धार करता जन्मा, हमारा उद्धार लेके आया, हमारे लिए पापों की क्षमा लेके आया. ये सब बातें मैंने और आपने सुनी हैं. मगर आज आपसे इस वचन को लेके किसी और विषय में बात करना चाहती हूँ. एक बार फिर से आपके विषय में इस वचन को पढ़ती हूँ. इट सेज, अ शूट विल कम फ्रॉम द स्टम्प ऑफ जेसी. यशे के ठूंठ से. कभी ठूंठ देखा है आपने?
हैव यू सीन अ स्टम्प? मैंने देखा था एक बार हम लोग अपने फैमिली के साथ में गए थे एंड वी हैड टू क्रॉस द फॉरेस्ट. हम लोग जिम कॉर्बेट गए थे एंड यू नो इट वाज अस, और हम लोग उस जंगल में से निकल रहे थे. आई सॉ मेनी स्टम्प्स. मैंने ठूंठ को देखा. जब पेड़ को काट दिया जाता है, उस पेड़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है, तो उसके ठूंठ यानी उसके स्टम्प को जो जड़ से लगा होता है उसको छोड़ दिया जाता है, उसको वैसी का वैसी छोड़ दिया जाता है और वो सिर्फ ठूंठ बचता है. हैव यू सीन एक फॉरेस्ट में, एक जंगल में या एक बाग में जब आप जाते हैं जहाँ खूब सारे पेड़ लगे होते हैं, दैट ब्यूटी इज डिफरेंट. बट यू नो व्हेन यू एंटर अ लैंड, जब आप एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ सिर्फ ठूंठ होते हैं. इमेजिन करिए आप एक ऐसी जगह गए, आप एक ऑर्किड में गए या एक बागीचे में गए, आप एक जंगल में गए, वहाँ पे पेड़ ही पेड़ थे, खूबसूरत पेड़ थे, एवरग्रीन फॉरेस्ट्स. एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वेंट देयर ऑल यू कुड सी वर द स्टम्प्स. वो सारे पेड़ काट दिए गए थे, सिर्फ ठूंठ ही बचे थे. यू नो उन ठूंठ को देखकर ऐसा मालूम होता है, ऐसा लगता है कि ये जगह बिल्कुल बैरन हो गई है, यहाँ की खूबसूरती जा चुकी है. बट यू नो उस स्टम्प, वो जब स्टम्प ही रह जाता है, उसको देख के एक बात समझ आती है, ना तो डालियां बची हैं, ना पत्ते बचे हैं, ना फल लगते हैं. when you can only see the stump of a tree, you know there are no branches, there are no leaves, and this tree will never bear a fruit again. And you know there is no beauty in that stump. उस ठूंठ में कोई खूबसूरती नहीं रह जाती, कोई कुछ अच्छा नहीं लगता, उसमें कोई रंग नहीं रह जाता, बिल्कुल रूखा सा एक सूखा सा ठूंठ रह जाता है. बट यशायाह ने कुछ देखा और उसने कहा, अ शूट विल कम अप फ्रॉम द स्टम्प ऑफ जेसी. यशायाह के ठूंठ से एक डाली फूट निकलेगी. एंड यू नो दिस एट टाइम्स, कभी कभी सोचेगा हमारी हालत भी ऐसी हो जाती है, हमारी सिचुएशंस भी कभी कभी ऐसी हो जाती हैं जब हमें लगता है कि हमारी टहनियाँ भी काट दी गई, हमारे पत्ते भी झड़ गए और हम पे तो अब कोई फल भी नहीं लगता. देयर इज नथिंग गुड अबाउट आवर सिचुएशन, देयर इज नथिंग गुड इन आवर सर्कमस्टांसेस, देयर इज नो ब्यूटी लेफ्ट. कुछ भी तो खूबसूरत नहीं रहा. हमको लगता है कि कुछ हमारी लाइफ में एक सिचुएशंस ऐसी आती हैं, परेशानियां ऐसी आती हैं, या कभी कभी कहूँ हमें लगता है कि हमने तो कुछ किया भी नहीं, लेकिन ये आपसे आपकी बातें ऐसी कैसी हो गई, ऐसी कैसी बिगड़ गई कि अब सिर्फ एक ठूंठ रह गया है. एंड यू नो व्हेन देयर इज़ नो ब्यूटी लेफ्ट, जब कुछ भी खूबसूरत नहीं रहता, हमें लगता है सिर्फ एक बदसूरत सा, जिसे देख के भी अच्छा नहीं लगता, एक ठूंठ रह गया है. देयर इज़ नथिंग गुड अबाउट दिस स्टम्प विच रिमेन्स इन माई लाइफ. वॉट विल आई डू अबाउट दिस स्टम्प? इस ठूंठ का मैं क्या करूँ? मेरी ज़िंदगी में तो शायद सिर्फ एक ये बेरंग सा, एक ये बुरा सा दिखने वाला ठूंठ ही है. बट यू नो समथिंग, आपको एक बात बताती हूँ. हम ये क्रिसमस का सीज़न है, ये यीशु मसीह के पैदा होने का वो वक्त है. एंड यू नो वी हैव हर्ड दिस थिंग कि यीशु मसीह जब इस संसार में आया, मैंने और आपने वो वचन पढ़ा है, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, यूहन्ना की इंजील में लिखा है, 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन, एंड ही सेज, गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन. दिस सीजन इज अबाउट लव, दिस सीजन इज अबाउट होप. बट एट टाइम्स इन आवर लाइफ वी डोंट फील दैट लव, एट टाइम्स इन आवर लाइफ वी डोंट सी दैट होप. लेकिन मालूम, एक बात मैं सोचने लगी कि कभी कभी हमें लगता है लव makes things easy. You know, when we have love, when we feel love, when we have hope, when we can see hope in things, जब हमें लगता है बातें आसान हैं, बातें आसानी से खुद ब खुद आप से आप अच्छी से अच्छी होते चली जा रही हैं, हमें लगता है yes this is love, yes this is love, there is hope in our lives because you know things are happening, good things are happening. एक के बाद एक बात अच्छी हो रही है, एक के बाद एक हमें लग रहा है oh yes God is bestowing his love upon us, upon our family, and we feel this is love, this is love. मालूम एक बात बताऊं, but love all the time and every time is not easy, and especially when हम जब खुदावंद के मोहब्बत की बात करते हैं, जब मैं और आप खुदा के प्यार की बात करते हैं, एक राज की बात आपको बताऊंगी आज के दिन में. His love is not easy, his love is not easy, his love does not come easy all the time, his love
is hard also. His love, it comes the hard way also. कभी कभी उसकी मोहब्बत, उसका प्यार हमारे लिए हमें तब नहीं दिखता, क्योंकि हमारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमें लगता है ये तो सिर्फ ठूठ ही तो है, देयर इज़ नथिंग गुड अबाउट इट, वेयर डू आई सी लव इन माई लाइफ. बट आई वॉन्ट टू टेल यू, God's love comes to you in a hard way. क्रिसमस की हम लोग क्रिसमस की बात करते हैं, हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत रंगीन लगता है. देयर आर सो मेनी कलर्स इन दिस सीजन, देयर आर सो मेनी कलर्स इन दिस फेस्टिवल. इतना कुछ हम अपने घर को सजाते हैं, नए कपड़ों को लाते हैं. वी लुक फॉर कलर्स, वी लुक फॉर गुड थिंग्स. बट इफ़ यू नो, अगर क्रिसमस की स्टोरी को आप एक बार फिर से याद करेंगे, इफ़ यू विल रिवाइंड द स्टोरी ऑफ क्रिसमस, एक बार फिर उसको रिविजन करिएगा और याद करिएगा, द क्रिसमस इटसेल्फ was hard. यीशु मसीह की पैदाइश जिसे हम मनाते हैं इतनी खुशी से, वो पैदाइश खुद ही मुश्किल से हुई थी, वो पैदाइश खुद ही आसान नहीं थी. उसकी पैदाइश को अगर मैं और आप याद करें ना, वो समय याद करें, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर जोसेफ. यूसुफ को इस बात पे विश्वास करना मुश्किल था कि मैं जिस औरत को, जिस स्त्री को मैंने अभी तक जाना नहीं, अब माय फियांसे, माय द वन आई एम एंगेज्ड टू मैरी, आई हैव नॉट येट नोन हर एंड शी इज कैरिंग अ चाइल्ड. उसके लिए ये बात माननी बहुत मुश्किल थी. उसके लिए सबके सामने मरियम को अपनाना मुश्किल था. इट वॉज हार्ड फॉर मैरी हु वॉज अ सिंपल वुमन, अ सिंपल लेडी, जिसने अभी तक किसी पुरुष को नहीं जाना था. उसके लिए ये मानना, ये जानना, ये एक्सेप्ट कर लेना that she's carrying a child through the Spirit of God, it was tough. उसके लिए उस दुनिया में निकल के जाना, उस दुनिया के लोगों को फेस करना मुश्किल था. It was hard for her. It was not only hard for Mary and Joseph, it was hard for baby Jesus. It was hard for baby Jesus. खुदा का इकलौता बेटा जब इस दुनिया में आया, उसके लिए 5 स्टार ट्रीटमेंट रेडी नहीं था. मालूम, जब अब तो ज़माना ऐसा है कि जब हमारे बच्चे पैदा होने वाले होते हैं, अगर हम कर पाते हैं, वी गिव देम द बेस्ट, वी ट्राई टू गिव देम द बेस्ट रूम इन द हॉस्पिटल. हम चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा सा न्यू बॉर्न बेबी स्वीट हो, जिसमें एक खूबसूरत सा कॉट हो. हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं. वी वॉन्ट टू गिव देम द बेस्ट दैट वी कैन. बट व्हेन जीसस वॉज बॉर्न, इट वॉज हार्ड. उसके लिए एक कमरा भी नहीं था. इट वॉज हार्ड फॉर हिम. द स्टोरी ऑफ क्रिसमस itself was hard, my dear friends. God's love is हार्ड. हम अपने बच्चों को जब प्यार करते हैं ना, हम चाहते हैं उन्हें हर चीज़ से शील्ड कर लें. हम उनको हर चीज़ जो उनको नुकसान पहुंचाती है उससे बचा लें. जो चीज़ उन्हें ठोकर दे सकती है उससे उनको बचा लें, उनको अपने पास रखें. कभी हमारे बच्चों को दुख ना होने पाए. बट कभी सोचेगा इफ़ यू आर गोइंग टू शील्ड योर चाइल्ड ऑल हिज और हर लाइफ, अगर आपने अपने बच्चे को ज़िंदगी भर छुपा के रखा, ज़िंदगी भर बचा के रखा कि इस बच्चे को दुख ना हो, इस बच्चे को तकलीफ ना हो, और आपने उस बच्चे को इस दुनिया के लिए तैयार नहीं किया, विल यू कॉल इट लव? इफ यू प्रोटेक्ट योर चाइल्ड so much that you don't let that child get prepared for an adult life in this world, क्या आप उस प्यार को कहीं justify कर पाएंगे as a parent? Don't you think you will be failing that child? You will have to become a hard parent. आपको एक ना एक दिन अपने बच्चे की तंबी करनी पड़ेगी, उसके साथ में हार्ड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? आप चाहेंगे कि ये घर से निकले, ये जाए, ये पढ़ाई करे, ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग करे, ये अपनी लाइफ में हार्डशिप्स को देखे, चाहे जैसे भी मैनेज करे. इस बच्चे को आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपको दुख होगा, बट यू विल लेट योर चाइल्ड एंड्योर हार्डशिप्स. Why? Because you want your child to be ready for an adult life. You want your child to be ready to go out and face the world. You will have to become hard as a parent. अगर आप पूरी लाइफ लॉन्ग अपने बच्चे के साथ में सॉफ्ट ही बने रहेंगे, you will be doing disservice to your child. आप अपने बच्चे को अगर ज़िंदगी भर बचा कर अपने घर में छुपा कर रखे रहेंगे, उसे कुछ करने नहीं देंगे, उसको एक हार्ड ट्रीटमेंट जब उसे चाहिए तब नहीं देंगे, you will actually be harming your child. Am I not right?
एम आई नॉट राइट? मैं उन पेरेंट्स से बात करना चाहती हूँ जो अपने बच्चों के लिए एक अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं. आई एम श्योर द पेरेंट्स आउट देयर लिसनिंग टू मी विल अग्री टू मी दैट देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू विल हैव टू बी हार्ड ऑन योर चिल्ड्रन, व्हेन यू विल हैव टू बी हार्ड ऑन योर चाइल्ड. और ऐसा ही मेरे और आपका पिता भी है, ऐसा ही मेरे और आपका यीशु मसीह भी है, ऐसा ही मेरे और आपका बनाने वाला भी है. वो हमें संभालता तो है, वो हमें बचाता तो है, लेकिन कभी कभी ही अलाउज for us to be cut down to just stumps. वो अलाउ करता है, वो इस बात की अनुमति दे देता है कि मैं और आप या मेरे और आपके जीवन में सिर्फ एक ठूंठ रह जाए, जब हमारी डालियां भी काट दी जाती हैं, जब हमारे पत्ते भी झड़ जाते हैं, जब हमें कोई फल भी नहीं लगता. माई फादर अलाउज दिस टू हैपन. ही अलाउज दिस टू हैपन नॉट बिकॉज ही डजंट लव मी एनी मोर. इसलिए नहीं कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ गुनाह कर दिए हैं, या इसलिए नहीं कि यीशु मसीह और मेरा बनाने वाला मेरा खुदा मुझसे प्यार नहीं करता. नो नो नो, डोंट अज्यूम दीज थिंग्स माई डियर फ्रेंड्स. गॉड लव्स यू, God loves you abundantly. God loves you more than anything else in this world. वो आपसे बेहद प्यार करता है, और क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है, that is exactly the reason he is allowing hardships to come in your life. That is exactly the reason he is letting you face life on your own. वो यही चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगी की मुश्किलें अपने आप उनका सामना करना सीखें, अपने आप जाएं और अपनी ज़िंदगी की बातें जो गलत हुई हैं उनसे सीखें. एक पिता थे, मुझे एक बात याद आती है. देयर वाज दिस फादर, और उनका बेटा था, और अपने बेटे से एक दिन वो बात कर रहे थे. एंड ही कॉल्ड हिज सन एंड ही सेड, माय डियर सन टेल मी समथिंग. उन्होंने अपने बेटे से पूछा, बेटा एक बात बताओ, हु इज़ योर फेवरेट टीचर. वो बच्चा टीनेज के आसपास का था, और जब उसने फादर से सुना था, माय फादर इज आस्किंग मी, उनसे पूछ रहे हैं कि मेरी फेवरेट टीचर कौन सी है, उस बच्चे ने एक जवाब दिया. उसने अपने पापा को बोला, पापा आप किस टीचर की, ये डिपेंड करता है कि आपका सवाल क्या है. आप अगर मुझसे उस टीचर के बारे में पूछ रहे हैं जिससे मैंने सबसे ज़्यादा सीखा, तो मेरा जवाब फ़र्क होगा. और अगर आप उस टीचर के बारे में पूछ रहे हैं जिसके साथ मैंने सबसे अच्छा टाइम बिताया, या आई हैड मोस्ट फन विद, जिस टीचर के साथ मुझे सबसे मज़ा आता था, देन माई आंसर इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट. इज इट नॉट राइट? हमारी लाइफ भी कभी कभी ऐसी ही होती है. मालूम, आप अपनी लाइफ के हर सिचुएशन में, हर लाइफ के लेसन में, या हर लाइफ के पड़ाव में ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ मज़ा ही आएगा. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू विल enjoy life all the time, and when you're enjoying life, it is also not necessary that you will learn the most in your life. कभी गौर करिएगा, जो आपकी ज़िंदगी के सबसे डिफ़िकल्ट हिस्से होंगे ना, the most difficult phases of your life, they would have made you learn the most. आपने अपनी डिफ़िकल्ट फेजेस से सबसे ज़्यादा सीखा होगा. और जिन हिस्सों में शायद आपने सब कुछ अच्छा ही देखा, यू हैड मोस्ट फन इन लाइफ इन दोज फेजेस, ज़रूरी नहीं है कि आपने उन फेजेस से भी सीखा हो. शायद थोड़ा सीखा होगा, लेकिन अपने डिफ़िकल्ट फेजेस से सबसे ज़्यादा सीखा होगा. जो टीचर आपको सबसे ज़्यादा सिखाएगा ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके साथ सबसे ज़्यादा मज़ा भी आएगा. एंड दैट इज़ हाउ गॉड इज़. ही पुट्स यू इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस. आप बाइबल उठा के देख लीजिएगा. यू नो, आइज़ाया सेज, उसको कुछ दिखा, उसने देखा तो सिर्फ ठूंठ था, उसको कुछ और तो नहीं दिखा था, कुछ खूबसूरती नहीं दिखी थी, कुछ पत्ते नहीं दिखे थे, कुछ फल नहीं दिखे थे, कोई फूल नहीं दिखा था. ही सॉ अ स्टम्प, बट इन दैट स्टम्प ही saw one thing else, and that one thing was he saw a branch shooting. उसने एक डाली को फूटते हुए निकलते हुए देखा. And you know, this is what our life is. My God, your God, उसने अलाउ तो करा. हमारा खुदा हमें कभी कभी सिर्फ ठूंठ बनने के लिए अलाउ तो कर देता है, मगर सिर्फ इसलिए because he wants us to prepare ourselves. सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि मैं और आप अपने आप को प्रिपेयर करें, मैं और आप अपने आप को तैयार करें. यू नो, एक वर्ड है, वो वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत जनरल सा वर्ड है. इट्स कॉल्ड कोऑपरेशन. बट यू नो, कोऑपरेशन का मतलब है कोऑपरेट.
कोऑपरेट, यानी कि को का मतलब होता है साथ और ऑपरेट का मतलब होता है काम करना, यानी कि साथ में काम करना। हमें कभी कभी लगता है ओ आई विल जस्ट प्रे टू गॉड, मैं खुदा से प्रार्थना करूंगा और खुदा बाप ये काम कर देगा। मैं खुदा से प्रार्थना करूंगा, लॉर्ड यू फ्लरिश मी इन द मिनिस्ट्री, लॉर्ड यू लेट योर विल बी डन इन माई लाइफ, माई लॉर्ड डू एज यू विल इन माई लाइफ। कभी कभी हमें लगता है प्रार्थना करेंगे और खुदा बाप सब काम आपसे आप कर देगा। माई डियर फ्रेंड्स, माई डियर ब्रदर्स, माई डियर sisters, my dear youngsters, when you're listening to me, remember one thing, जब आप प्रार्थना करें ना कि खुदा बाप तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तब इस बात का ध्यान रखिएगा, there is a word called cooperate। आपको खुदावन के साथ में काम करना पड़ेगा, खुदा के साथ में कोऑपरेट करना पड़ेगा। जब आपको वो कुछ सिखा रहा है तो आपको सीखना पड़ेगा। आपको लगेगा सिर्फ ठूठ, मेरी जिंदगी में सिर्फ ठूठ रह गया, what is good about my life, what is good about my situation, that is exactly the situation, my dear people of God, that God wants you to learn something। खुदा बाप आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है। He wants you to evolve, He wants you to become a better human being, and when He's trying to teach you something, be a good student and learn it। ये मत सोचिएगा कुछ भी तो अच्छा नहीं है, किसी चीज़ में भी तो रंग नहीं है, मुझे किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता, कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता, लाइफ में सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट हो गई है। When you're facing your demons, जब आपको लगे कि ये तो वो चीज़ें हैं जिनसे मैं भाग रहा था, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने दबा कर रख दी थी, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें मैंने कारपेट के नीचे डाल दिया था, बिस्तर के नीचे कर दिया था, ये वो बातें हैं जिन्हें मैं फेस नहीं करना चाहता था, और ये वही बातें हैं जो अब मेरे सामने आ रही हैं। Maybe God is wanting you to learn something. God is wanting you to learn something, and when He's teaching you something, my dear people of God, be good students। आप बाइबल में देख लीजिएगा, सबके साथ में यही हुआ है। मैं किसी एक शख्स के बारे में आज आपसे बात नहीं करना चाहती। Just pick up the Bible. This is Christmas. Get back into revision. Christmas itself was hard. God is a hard teacher. He brings love the hard way. He brings hope in your life the hard way. He is not going to make things easy for you. अगर आपको लगता है सब बातें वो आपके लिए आसान कर देगा, हम कितनी बार प्रार्थना करते हैं, खुदा बाप हमारी सिचुएशंस को आसान कर दे, खुदा बाप ये हमारी सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो जाए। No, maybe not. Maybe this is not what He's wanting. Maybe He's not letting your situation to change because He wants you to change। People of God, इस बात का ध्यान रखिएगा। Maybe He's not letting your situation to change because He wants you to change। क्योंकि वो ये आपकी सिचुएशन को, आपकी परिस्थिति को शायद इसलिए नहीं बदल रहा है क्योंकि वो इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप बदल जाएं। मालूम, इब्राहिम को 25 साल खुदावन ने इंतज़ार करवाया एक पुत्र के लिए, चाहता तो तभी दे देता। मूसा को 40 साल इंतज़ार करना पड़ा इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए। खुदा बाप चाहता तो मूसा को उसी वक्त करने देता, उसी वक्त जब वो मिस्र से भागा था तभी ना उसको ना भागने देता और इज़राइलियों को ले जाने के लिए बोलता, लेकिन नहीं, मूसा को 40 साल रुकना पड़ा। यूसुफ को 13 साल रुकना पड़ा बिफोर ही कुड बिकम द हाईएस्ट अथॉरिटी इन इजिप्ट। इन सब लोगों ने हार्डशिप्स को देखा है। Nothing came easy for Abraham before he could have the promise। वो तो देख भी नहीं पाया था, इब्राहिम तो उस प्रॉमिस्ड लैंड को देख भी नहीं पाया था, लेकिन उसने अपनी पुश्तों के लिए उस वादे पे विश्वास किया था। He went through hardships। उसने अपने बाप के घर को छोड़ा था, वो चलता रहा था। उसके लिए खुदावन ने कुछ भी आसान नहीं किया था। यूसुफ के लिए खुदावन ने कुछ आसान नहीं किया था। He never made things, yes he was with them। वो हर वक्त, हर पल, हर कदम अपने लोगों के साथ था, but he did not make things easy for them। He did not make things easy for Jesus। He will never make things easy for you because He wants you to learn। He has kept greater things for you, my dear people of God। उसने आपके लिए बड़ी बातों को रखा है और बड़ी बातों को करने के लिए बड़ी प्रिपरेशन लगती है। He is preparing you for something big in your life, people of God।
And it calls for big preparation. Remember one thing, when you are down to nothing, God is up to something. When you, people of God, feel that you're down to nothing, remember God is up to something. God is up to something. You know why? That stump could still bring forth a branch. मालूम वो ठूंठ, एक डाली क्यों उसमें से फूट नहीं पाई? क्योंकि उसकी जड़ें तो अभी भी खुदावन में थी, उसकी जड़ें तो अभी भी अपने बनाने वाले में थी. जब तक मेरी और आपकी जड़ें अपने बनाने वाले में लगी रहेंगी, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह में लगी रहेंगी, मैं और आप चाहे कितनी भी बार काट दिए जाएं, मैं और आप चाहे कितनी बार हमारी जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस आ जाएं जो हमें ठूठ बनाकर छोड़ जाएं, बट आई वांट टू टेल यू, evolve people of God, because there is hope and there is the love of God. यही आशा है, यही प्यार है जो खुदावंद ने हमसे किया है कि हम में जब कुछ भी नहीं बचता तब भी he can bring forth branch. वो कुछ नहीं में से भी कुछ लेकर आ सकता है. He's just wanting you to prepare. He's just wanting you to prepare yourself. He's just wanting you to become better. He's wanting you to evolve. He's wanting you to evolve. And this Christmas season, my dear people of God, I just want to encourage you one thing. एक बात से आपको उत्साहित करना चाहूँगी. Become a better version of yourself. Become a better version of yourself. खुदावन ने आपको जिस काम के लिए बनाया है, जिस बात के लिए बनाया है, it's a big thing. Start preparing big. आप लोगों ने बाउंसी बॉल देखी होगी. मालूम बाउंसी बॉल जिससे बच्चे खेलते हैं, अगर आप उसको बेड पे उछालेंगे ना तो वो उछल के वापस नहीं आएगी. इट हैज टू हिट अ हार्ड फ्लोर टू बाउंस बैक स्ट्रांगली. आप और मैं भी एक बाउंसी बॉल की तरह हैं. जब तक मैं और आप एक हार्ड सरफेस को हिट नहीं करेंगे ना, मैं और आप बाउंस बैक भी नहीं करेंगे. एंड इफ यू एंड आई वांट टू बाउंस बैक big, we will have to hit a hard surface. Bounce back, people of God. He's there. He loves you and he has kept everything for you, but he's just waiting for you to prepare yourself. वो आपके इंतजार कर रहा है. Prepare yourself, become like him. उसके लिए अपने आप को तैयार करिए. Bounce back big. That is why Isaiah says, from the stump of Jesse, the stump, don't forget, even if it's a stump in your life, even if it's just a stump, it will bear fruit. It will bring forth a shoot. Bounce back. May the Lord bless you. ये क्रिसमस का सीजन, ये फेस्टिवल, ये त्यौहार का मौका आपके लिए बहुत सारी बरकतों को लेके आए. Enjoy yourselves with your family. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make his face shine upon you and may he be gracious to you, people of God. खुदा बाप आपको बहुत 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 बरकत दे. Always be blessed. Praise the Lord. Trust that the Lord is with you in your most difficult phase. आपके सबसे मुश्किल समय में, जी हाँ, आपके सबसे मुश्किल समय में अगर कोई आपके साथ में है तो वो आपका प्रभु यीशु मसीह है. वो आपका खुदा है, वो आपका परमेश्वर है, वो आपका सहायक है, पवित्र आत्मा जो आपके साथ में सदा सर्वदा पाया जाता है. You know the reason why Jesus came in this world was he wanted to give us strength. He wanted to give us God's strength. वो सामर्थ जिससे यीशु मसीह सामर्थ पाता था और अपने हर दिन की परीक्षा को, अपने हर दिन की मुश्किल को वो सामना किया करता था. ऐसा मत समझिएगा क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था इसलिए उसके ऊपर कभी कोई मुसीबत ही नहीं आती थी. Was he not surrounded with people who wanted to bring him down every time he used to preach, every time he used to heal, every time he used to do something good? These people wanted to bring him down. He had to face such people. He had to face his fears, if I would say. Why fears? Because he was in flesh. क्योंकि वो उस समय चल फिर रहा था और लोग जो उससे बरकत भी पाते थे, वहां ऐसे भी लोग थे जो उसको नीचा दिखाना मांगते थे, जो उसको गिराना मांगते थे. लेकिन यीशु मसीह सामर्थी था क्योंकि यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर की सामर्थ कार्य करती थी और उसने वो इस पृथ्वी पर चल कर बताया, इस पृथ्वी पर रह कर बताया कि हम भी, मैं भी और आप भी परमेश्वर की सामर्थ में सामर्थी होकर अपने फियर्स का सामना कर सकते हैं और उनके ऊपर गालिब आ सकते हैं. गालिब आप तभी आएंगे जब आप सामना करेंगे. I am blessed by the word of God and I'm sure that even you are blessed by the word of God because the word of God speaks to us every time we read it,
every time we listen to it, you need to accept it. You need to let it work in your heart. You need to let it work in your mind. You need to let it work in yourself. जब आप कार्य करने देंगे परमेश्वर के वचन को, तो परमेश्वर का वचन आपको तब्दील करता चला जाएगा, आपको चेंज करता चला जाएगा. You will no more be called a fearful person, but you will be called more than victorious person. मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन, परमेश्वर का ये वचन आपके अंदर 100 गुना कार्य करेगा और आप 100 गुना फलवंत होने पाएंगे. You will bear 100-fold fruit. आइए दुआ करें. प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए जो आज भी हमसे बातचीत करता है, हर दिन में हमसे बातचीत करता है. आज का ये वचन मेरे प्रभु कि हमें डरना नहीं है, हमें अपनी मुसीबतों का सामना करना है, हमें अपने डर का सामना करना है, हमें अपने फियर्स का सामना करना है. वो बातें जो शायद हमें कहती हैं हम नहीं कर सकते, हमें उनका सामना करके परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को यह बताना है और उन परिस्थितियों को बताना है कि मेरा परमेश्वर बड़ा है. प्यारे परमेश्वर, जब वचन सुना है तो ये वचन हमारे अंदर कार्यगत होने पाए, हमारे अंदर आके ये बस जाए, ताकि तेरा वचन हमारे अंदर से होके जब निकले तो हम मेरे प्रभु जयवंत से भी बढ़ के होने पाए. सबको बड़ी बरकत दे. क्रिसमस का ये सीजन, क्रिसमस का ये महीना हम सबके लिए आशीषों और बरकतों का कारण बनता चला जाए. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. हालेलुया. We are going to meet you again, once again, in this week on the 24th. In the evening, we are going to bring to you some beautiful carols. And once again, I believe that the Lord is going to bless you. And on the 25th, the day of Christmas, we are going to celebrate together. We are going to sing songs. We are going to listen from the Word of God. And everything that we do is going to bring glory to the name of Jesus. Have a beautiful week. Have a blessed week. Stay safe, stay healthy, and stay happy in Jesus. Praise the Lord. God bless you.